Prepstars! Jai Hind. This is a wonderful channel, MathSeps. So, this is the lecture number 2 on straight line. In the previous video, I have taught you about the center of the triangle, which are orthocenter, circumcenter, incenter, and centroid. I have also told you about the distance formula and section formula, the external division and internal division. So, you can watch that video by clicking on the link given in the I button and also in the description box. So, after watching that video, you can watch this video to know the full concept of today's topics, which are the slope of the straight line, the angle between the two lines. This is a very important concept regarding your boards also and your NDA exam also. And the parallel and the perpendicular lines, all the equations of a straight line, all the equations, सारे फॉर्म्स आपके स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन के, जैसे कि इंटरसेप्ट फॉर्म, जैसे कि आपका हो गया पॉइंट स्लोप फॉर्म, और फिर आखिरी में आता है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन. एक लाइन का डिस्टेंस एक पॉइंट से क्या होगा. तो चलिए देखते हैं ये टॉपिक्स को. सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्लोप ऑफ अ लाइन, स्लोप, उसके बाद एंगल, उसके बाद पैरेलल और परपेंडिकुलर, और फिर आखिरी में डिस्टेंस. सबसे पहले बात करेंगे किसकी, स्लोप की. सो स्लोप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट to learn in straight line. Without slope, there will be no concept of straight line. So let's start with slope. So slope is something like this. So a straight line which has an inclination with an x-axis of theta. So what is here theta? So theta is nothing but an angle which is a straight line. This straight line is forming with the x-axis. And this theta has to be in anti-clockwise direction. किसमें होगा ये, anti-clockwise direction में. Because in anti-clockwise direction the theta is positive, and in clockwise direction the theta is negative. So what is the definition of slope, or what is slope? So slope is nothing but the angle which the straight line is making with the x-axis इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ये क्या है आपका, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. जो भी आपकी स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाएगी, और वो एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा एक्स एक्सिस से, मतलब ये इस डायरेक्शन में होगा, इस वाली में नहीं, इस वाली में. तो ये क्या होगा आपका स्लोप हो गया. और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमेशा स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव. सो आपका ये स्लोप हो गया. अब आगे बढ़ते हैं हम लोग किस पे, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, हाँ, एंगल बिटवीन टू लाइन्स. Angle between two lines, so in this I will tell you both the single formula and the double formula, and I will also tell you the usage of the double formula, that is the complete formula. So wait a minute. So this is something like this, so this is theta 1, and this is theta 2, this is theta, and this is phi. So here the formula for getting this theta is tan theta equals to m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2. So this is the formula for getting this theta, and this theta is nothing but acute angle. ये आपको क्या देगा, acute angle देगा. So this is the acute angle. अगर ये आपका acute angle है तो आपका ये क्या होगा, 180 माइनस थीटा. ये क्या होगा आपका 180 माइनस थीटा. सो ये acute है, तो 180 माइनस थीटा करेंगे तो क्या निकलेगा, ऑब्ट्यूस निकलेगा. क्योंकि जो acute एंगल होता है वो आपका 0 से 90 तक का होता है, ठीक है, और जो ऑब्ट्यूस होता है वो आपका 90 से 180 डिग्री तक का होगा. सो acute होगा 0 से 90 और ऑब्ट्यूस होगा आपका 90 to 180. सो दिस इज ऑब्ट्यूस एंगल. सो ऑब्ट्यूस एंगल इज नथिंग बट tan pi minus theta equals to m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2. So minus tan theta, because tan 180 minus theta is minus tan theta, and this will be, so minus sign will come here, so minus m1 minus m2 1 plus m1 m2. So these are the two formulas
that are for acute angle and obtuse angle. So this is obtuse angle here. So this is obtuse angle. So this is tan 180 minus theta, it will come 5. So 5 की वैल्यू आएगी. So अब देखते हैं हम लोग देखेंगे कि इसका कंप्लीट फॉर्मूला क्या लिखेंगे. हम लोग इसका कंप्लीट फॉर्मूला लिखेंगे tan theta equals to plus minus m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2. So where to use this formula? So this formula is used when the m1 m2 are given. So this formula is used, this one formula. So this formula is used when m1 m2 are given. But when the angle will be given, this formula will be used. When angle is given and you have to find m1 and m2. So जब आपको थीटा दिया होगा तभी तो आप m1 m2 निकाल पाएंगे, क्योंकि प्लस माइनस की 2 इक्वेशन होंगी. You will have 2 equations and 2 variables. So for solving that 2 variables, you need 2 equations. So for that only the complete formula is used. When the complete formula is used, this is the complete formula. When the angle is given and you have to find out m1 and m2. So this is m1, ये आपका इसका स्लोप है और ये इसका स्लोप है, और इसी से आपका पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइंस की कंडीशन निकलेगी, वो मैं आपको बताऊंगा. फिर यहाँ पे ये एंगल जब दिया होगा तब ये फॉर्मूला लगेगा, और ये कब लगेगा जब एंगल नहीं दिया होगा, मतलब कि m1 m2 की वैल्यू दी होगी और एंगल निकालना होगा. तो ये एक्यूट के लिए, ये आपका ऑब्ट्यूज के लिए आ गया. अब बढ़ते हैं आगे किसके लिए, अब बढ़ते हैं आगे अपने परपेंडिकुलर और पैरेलल लाइंस के लिए. ये मैंने आपको पूरा बता दी कि क्या कब कंप्लीट फॉर्मूला लगेगा, कब ये वाला फॉर्मूला लगेगा. अब आप आगे बढ़ते हैं इसके लिए. अब आपका tan थीटा क्या हो गया, tan थीटा इक्वल्स टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2. अब ये आपका, क्योंकि ये आपको मैंने क्या बताया था, स्लोप है, ये दिस इज नथिंग बट द स्लोप. सो ये आपका, अगर आप ये, अब आपकी दो लाइन अगर पैरेलल है, दो लाइन पैरेलल है, तो इनके बीच का थीटा क्या होगा, 0 होगा. ये क्या होगा, 0 होगा. अब जब 0 होगा तो 0 कब हो सकता है, जब m1 माइनस m2 0, क्योंकि आप खुद ही देखिए जब पैरेलल है, ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन पैरेलल है, मतलब इसका थीटा आपस में क्या होगा, 0 होगा. अब 0 होगा तो m1, तो 0 कब होगा, ये जब m1 माइनस m2 0 और m1 इक्वल्स टू m2. दिस इज नथिंग बट द कंडीशन ऑफ पैरेलल लाइंस. ये क्या है, कंडीशन ऑफ पैरेलल लाइंस. क्या कंडीशन ऑफ पैरेलल लाइंस, ये क्या आपकी पैरेलल लाइंस की कंडीशन है. ठीक है, अब आते हैं हम दूसरी कंडीशन पे जो है परपेंडिकुलर लाइन की. सो इन दैट m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2. अब जब ये आपकी 90 डिग्री है, अब जब दोनों परपेंडिकुलर लाइन है तो tan थीटा क्या होगा, tan 90 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है. तो यहाँ पे क्या लिख देंगे आप, इन्फिनिटी लिख देंगे. अब आप खुद ही देखिए ये इन्फिनिटी कब होगा, ये इन्फिनिटी कब होगा, जब कुछ सर्टेन वैल्यू के नीचे डिवाइड होगा किससे, 0 से. तो मतलब ये 0 होना चाहिए. अब 0 होगा तो यहाँ पे क्या होगा, m1 m2 इक्वल्स टू -1. सो दिस इज द कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर लाइन. सो यह कौन सी कंडीशन है, m1 m2 इक्वल्स टू -1 इज द कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर लाइंस एंड m1 इक्वल्स टू m2 इज द कंडीशन ऑफ पैरेलल लाइंस. सो मैंने आपको बता दिया कंप्लीट पूरा एंगल बिटवीन टू लाइन से परपेंडिकुलर और पैरेलल की कंडीशन. So now moving forward to next thing, that is equations, different equations of a straight line. So first equation is y equals to mx plus c. Y equals to mx plus c. So this is known as the intercept form where c is the y intercept. So I will give you a example of this like this. So this is a straight line. So this is m, स्लोप m है, मतलब थीटा है, और ये आपका c हो गया, मतलब कि जो y इंटरसेप्ट होगा दैट इज c. दिस इज नथिंग बट दी y इंटरसेप्ट. जो लाइन y एक्सिस पे जितना इंटरसेप्ट काटेगी, जितना हिस्सा y का काटेगी वो y इंटरसेप्ट है, तो c वो हो गया, m हो गया, और m होगा स्लोप, और y x क्या है आपका, इसकी कोऑर्डिनेट है, इस पे कोई कोऑर्डिनेट है,
y कॉमा x कॉमा वाई, x कॉमा वाई। सो आपका ये हो गया। अब चलिए बढ़ते हैं किस पे, दूसरा y माइनस वाई वन इक्वल्स टू m x माइनस x1। So this is nothing but you have to find the equation of the line when one point is given and the slope is given। मतलब कि अगर आपका ये कोई लाइन है तो इसका आपका m दिया है और आपका क्या, आपका एक पॉइंट दिया है। अगर आपके लाइन पे एक पॉइंट दिया है और आपका स्लोप दिया है तो आप इस इक्वेशन से इस लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। ये आपकी क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन। So you have find the way how to find out the equation of the line when a point is given and the slope of the line is given. The slope of the line is given. So this is intercept form and this is a point slope form and this is a point slope form. So now moving to the second third one, that is the intercept form. सो इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होता है, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1। क्या होता है इसमें, ये हो गया, ये लाइन गई, ये आपका ए इंटरसेप्ट काटा और ये आपका बी इंटरसेप्ट काटा। अगर आपको इक्वेशन निकालनी है तो आप इस इक्वेशन को यूज करेंगे तो आपकी क्या आ जाएगी, इस लाइन की इक्वेशन। हमेशा इस लाइन की इक्वेशन की मैं बात कर रहा हूं। आई एम ऑलवेज टॉकिंग अबाउट दिस इक्वेशन लाइन। मैं हमेशा इस इक्वेशन की लाइन की बात कर रहा हूं। ये जो इस लाइन की इक्वेशन होगी, तो आपको मैंने 3 बता दी। सबसे पहले y इक्वल्स टू mx प्लस सी, फिर उसके बाद मैंने पॉइंट स्लोप फॉर्म y माइनस वाई वन इक्वल्स टू m x माइनस x1 और फिर इंटरसेप्ट फॉर्म x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल्स टू 1। अब चौथी पे चलते हैं। चौथी क्या आपका परपेंडिकुलर फॉर्म। So this is the most important for your boards also and for competitive exams also. That is, so this is a diagram where this is alpha and this is the p distance from the origin. यह आपकी ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर डाली गई है इस स्ट्रेट लाइन पे, जिसकी डिस्टेंस क्या है, p है, और इस लाइन पे एक x, y पॉइंट है। सो इक्वेशन क्या निकलेगी, x cos alpha and alpha is the angle plus y sin alpha equals to p. So the equation of the perpendicular form and this equation is of the straight line which is cutting x axis and the y axis. That is x cos alpha plus y sin alpha equals to p. P is the perpendicular distance. P is the perpendicular distance from this origin to this straight line. So this is all about the main equations of a straight line. So now moving forward to how you will calculate the gradient of a line when the equation is given. मतलब सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, स्लोप बताया था। एक जनरल डेफिनेशन बताई थी कि m इक्वल्स टू tan थीटा क्या होता है, स्लोप होता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं लाइन का जब आपको स्लोप, मतलब जब आपको इक्वेशन दी हो। तो उससे बहुत सिंपल है, दिस इज वेरी इजी बिकॉज आई हैव टोल्ड यू ऑल द कॉन्सेप्ट। नाउ द थिंग्स विल बिकम इजी फॉर यू। सो जैसे कि हमने y इक्वल्स टू mx प्लस सी दिया, तो ये क्या है, यहाँ पर ये m क्या है, स्लोप है, कुछ नहीं है। जैसे कि अगर आपका कोई इक्वेशन है a1 y प्लस b2 x प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो ये आपका क्या होगा, आप इसको बस कुछ नहीं करना है, आपको y इक्वल्स टू mx प्लस सी बना देना है। ये आपका इधर आ जाएगा माइनस b2x माइनस सी, और ये आपका a1 नीचे आ जाएगा, तो आपका क्या आ जाएगा, y आ जाएगा अपॉन a1। सो आपको मैंने ये बताया कि y इक्वल्स टू mx प्लस सी में अगर आप इसको ले आएंगे तो जो x का कोएफिशिएंट होगा वही स्लोप होगा। द कोएफिशिएंट ऑफ x इन द इक्वेशन ऑफ लाइन विल बी द स्लोप ऑफ दैट लाइन। x का कोएफिशिएंट ही स्लोप है। अब लास्ट टॉपिक पर आते हैं, क्या है आपका डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। एक पॉइंट की दूरी एक लाइन से कैसे निकालेंगे। So in the first video I have taught you about the distance formula. In that the 2 points are given, but in this the point is not given but the equation of the line is given. So the formula for this is like this. This is this and this is the line, and you have to find out the d distance. So d distance will be ax1 plus by1 plus c upon under root a square plus b square, where this is x1,
y1. So there is x1 y1. So and this is the equation a1x plus by plus c equals to 0. So you will put that point coordinates in this line and under divided by अंडर रूट ऑफ दिस कोएफिशिएंट एंड दिस कोएफिशिएंट, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. आपको इस कोऑर्डिनेट को इस लाइन के कोऑर्डिनेट में डालना पड़ेगा और डिवाइड करना पड़ेगा इसके कोएफिशिएंट को इसके कोएफिशिएंट के अंडर रूट के स्क्वायर से. सो यहां से आप क्या निकलेगा, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, एक डिस्टेंस की एक पॉइंट की दूरी लाइन से. सो नाउ आई हैव कंप्लीटेड दीज ऑल द टॉपिक्स एंड full concept of straight line by these two videos, and in my next video I will bring out the trick to find the various points in a rectangle, in a triangle, the circumcenter, the orthocenter, all the tricks because of which your speed in doing maths will increase. So wait for that video. Until then, prepare hard for your ND 2021 exam, and Jai Hind.